once again. I hope you all are happy and healthy, fit and fine. Yes? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, since yesterday we have started again our classes. We have come back after summer vacations. And yesterday we discussed many things. मैम हाँ मैम मैंने आपको प्रोजेक्ट वर्क भेजा था. हाँ बेटा, I have seen. मैंने मैम देख मैंने लिया. भी भेज हाँ, yes, I have seen it. Okay. तो चलो, yesterday one or two student was asking about that 10th question ना. चलो आज एक वीडियो देख लेते हैं उसका, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं. ठीक है? About that monkey Yes, one. ma'am. Let's see how it is jumping. Did My screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Let's see. I have got a video through which you can understand it very easily. Okay, let me play it. See here, you can see a model of steps are made and one monkey is standing here, है ना, at first step. अब बेटा एक चीज ध्यान से समझना कि जब हम वो नीचे की तरफ जंप करेगा तो नीचे की तरफ जंप करने वाले इसको हम लेते शो करेंगे निगेटिव इंटीजर से, और ऊपर जब वो जंप करेगा तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव इंटीजर से. ओके? Am I audible? Am I audible बेटा? मैम इको हो रहा है. मैम इको हो रहा है. मैम वॉइस मैम वो आपने प्रेजेंटेशन ऑडियो ऑन कर दिया था इसलिए. क्या हो गया बेटा? मैम वो आपने प्रेजेंटेशन ऑडियो ऑन कर दिया था इसलिए बहुत इको हो रहा था. ऑडियो तो बंद नहीं किया. मैम अच्छा रुको. जो स्क्रीन शेयर की थी आपने, जब वो ऊपर एक बटन था प्रेजेंटेशन ऑडियो, तो उससे वो डबल आवाज आ रही थी, तो बहुत जोर से इको हो रहा था. Okay. So my screen was visible but I was not audible. एक मिनट. हाँ, the attendance list for 7 p.m. from मैम आप ऑडिबल भी थी लेकिन पता है ईगो हो रहा था इसलिए नहीं आ रही थी आवाज. Okay. Okay. Actually, what had happened ना, I have downloaded today one new extension for attendance. तो अब वो उसका आ गया है attendance. तो that's why इसलिए दिक्कत आ रही थी. ठीक है? हाँ. Okay. Let me check whether that attendance is coming or not on the screen. Screen पे आज attendance का as such it is not coming. But वो जैसे ही कुछ interruption आया तो it was recorded automatically. देखते हैं. 22 students are here yet. है ना? चलो ठीक है. Yes, ma'am. ठीक है. Let me share it again my screen and then we will watch the video.
हाँ, that you could listen that I have explained कि जब भी मंकी नीचे की तरफ नीचे डाउनवर्ड स्टेप्स में आएगा वो that integer will be taken with negative sign, है ना, और जब वो ऊपर की तरफ जंप करेगा तो we will take it as positive sign. ठीक है? ओके मैम. Yes. Is it visible, beta? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let me know whether it is audible or Yes, not. ma'am. मैम आवाज नहीं आ रही. मैम अटक गई वीडियो. अभी वो अटक And गई है it wants वीडियो. to अब reach the स्टार्ट water level, which is at the 9th step. The steps are below the tank. The steps are inside the tank. So that is why we have labeled the steps with negative numbers, because we are moving down. And till now we have always learned that notation that up means positive, down means negative. So since the steps are moving down, so we have taken them as -1, -2, -3, -4 and so on. So we are going till step -9. Why? Because the water level is at the 9th step. यस, वाटर लेवल कौन सी स्टेप पे है? 9th स्टेप पे है. Ninth प्रणव? step. Ninth step. हाँ, शायद प्रणव ने पूछा था ना कल ये क्वेश्चन. Yes, ma'am. हाँ बेटा, सुन रहे हो, ध्यान से देख रहे हो? Yes, ma'am. वेरी गुड. बाकी सारे बच्चे भी देख रहे हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है. ओके, तो सी द मंकीज स्टैंडिंग एट फर्स्ट लेवल, है ना, और वाटर कहाँ पर है? वाटर लेवल कहाँ पर है? 9th लेवल पे. Ninth level. हाँ, और व्हेन ही विल मूव डाउनवर्ड देन इट विल बी टेकन विथ नेगेटिव साइन. ठीक है, हम उसको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, और जब वो ऊपर की तरफ जंप करेगा उसको पॉजिटिव इंटीजर से शो करेंगे. ओके ओके. यस मैम. Yes, ma'am. आप देखो वीडियो. Now in the first part of the question, the monkey is sitting at the topmost step, and it wants to go to the 9th step inside the water tank so that it can reach the water level. Okay, now if you see, the monkey does not jump straight away, but what does it do? In every jump he is moving 3 steps down, and then it moves 2 steps up. So there's an alternate movement of 3 steps down and then 2 steps up. So this is how the monkey is moving, and then it reaches -9 level. Okay, so we have formed a table here in which we will be noting down the observations. In the table here we will be noting down the हाँ, observations. देखो इसमें कैसे करेंगे. सबसे पहले क्या कर रहा है वो? 3 स्टेप्स डाउन आता है और उसके बाद 2 स्टेप्स ऊपर चढ़ जाता है ना. तो इसको पहले उसके जो जंप्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी फर्स्ट इसमें क्या पोजीशन होगी वो हम समझेंगे. राइट, तो अभी जब कोई भी जंप नहीं है स्टार्टिंग में 0 पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे, उसकी पोजीशन कहाँ है? स्टार्टिंग पोजीशन कर्सर पे भी ध्यान दो. -1 पे खड़ा है वो, है ना. ठीक है, अब आगे देखते हैं. -1 पे खड़ा है, यहाँ से 3 स्टेप्स नीचे आएगा तो -2, -3, -4 पे आ जाएगा, और -4 पे जब आया तो 2 स्टेप फिर ऊपर चढ़ जाएगा, यानी 1 2 तो इधर आ जाएगा. तो उसकी फर्स्ट इसमें एक राउंड जब कंप्लीट कर रहा है वो, तब उसकी पोजीशन क्या होती है, ये सब ध्यान से समझो, तब तुम पता कर पाओगे कि उसको -9 पे पहुंचने के लिए कितनी स्टेप्स जंप how करना the पड़ेगा. monkey moves. Ma'am, So nine. 3 steps down will be represented by -3. See, 3 steps down will be represented by -3, and 2 steps up will be represented by +2. Now since the monkey is at the topmost step, so first movement will be 3 steps down, that is 1 2 3. So it's 3 steps down. And how will we represent this movement in the table? It is -1 -3, which is -4. I'll show you the table at the end of the video also once again. So in case you are not able to see the steps clearly, but just notice the movement that it is -1 because the starting position is -1. So with the first jump, monkey reaches 3 steps down, which is -4 here.
समझ में आया? सबसे पहले वो -1 पे था, 3 स्टेप्स नीचे आया वो, तो यहाँ -1 से 3 स्टेप कहाँ जाएगा? -2, -3, -4 पे, है ना? तो और यू भी मैथमेटिकली तुम लिखोगे तो -1, -3 कितना हो जाएगा? -4, ठीक है? तो फर्स्ट जंप पे वो कहाँ पहुंचा? -4 पे, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर उसको कुछ खुरापात सूझी और फिर ऊपर चला गया 2 स्टेप्स। Next, 2 steps up. So it is -2. We can look at the model and we can understand that 2 steps up means -2. Now let us understand it with the integer calculation, that from -4, when we move -4 पे 2 था steps up, और it is 2 स्टेप्स अप हो गया, -2. है ना? देखो यहाँ पे पहले जब जंप कर लिया तो -4 पे था, उसके बाद वो 2 स्टेप्स ऊपर चढ़ गया, तो -4 + 2 कितना हो जाएगा बेटा? -2 -2। तो अब उसकी पोजीशन कहाँ है? -2 पे खड़ा है वो। अब -2 के बाद फिर क्या करेगा वो? 3 स्टेप्स डाउन आएगा, है ना? फिर 2 स्टेप्स अप आएगा, ऐसा करते ही रहेगा वो। Similarly, we'll be going further now. Again 3 steps down. देखो, So 3 steps down, it comes to -5. हाँ देखो, -2 पे था, -2 से 3 स्टेप डाउन आएगा, मतलब कहाँ आ जाएगा ये? 1 2 3, यानी कहाँ आ गया अब वो? -5 -5 पे आ गया। अब -5 से 2 स्टेप अप जाएगा, तो ये 1 और ये 2 कहाँ पे आ जाएगा वो? -3 पे। ये समझ में आ रहा है? हाँ। यस मैम वो चलता है मैम, फिर फाइनली वो एक ही कदम चलता है। हाँ, वो स्टेप अभी हम देखेंगे ना, अभी जितना पहले कर रहा है वो तो देख लें, है ना? Yes, क्वेश्चन ma'am. के अकॉर्डिंग पहले उतना तो समझ लें, हम फिर आगे की बात करेंगे। That's -2 -3 equal to -5, and then for 2 steps up it will be -3 by integer calculation. Let's look at here. So 2 steps up is 1 and 2. So the monkey jumps straight away to -3. Third अब उसकी step. पोजीशन कहाँ आ गई? Next, -3 again पे। 3 steps down. So 3 steps down and 2 steps up. See, from -3, 3 steps down, 2 steps up. So we'll ध्यान दो, अब -3 पे था मंकी, तो 3 स्टेप नीचे आएगा तो -4 -5 -6 पे आ जाएगा। जब -6 पे आ गया तो 2 स्टेप फिर अप जा रहा है, यानी -5 -4 पे आ गया, तो अब उसकी पोजीशन कहाँ हो गई? -4 पे, है ना? -4 पे। अब -4 पे आने के बाद फिर वो 3 स्टेप डाउन जाएगा, यानी -5 -7 -7 पे आया। यहाँ आने के बाद फिर 2 स्टेप्स अप जाएगा, यानी -6 -5 पे। ऐसे करेगा वो। ऐसा कब तक कर रहा है वो? मैम जब तक वो 9th स्टेप पे ना पहुंच जाए। Yes, ma'am. हाँ, तो लेट्स सी। represented in the table now. That's -3 -3 -6. है ना? -3 पे था, 3 स्टेप नीचे आया तो -6 पे आया, -4. फिर 2 स्टेप अप हुआ तो And now -4 after पे this, आया। again 3 steps down, 2 steps up. So from -4, when we go 3 steps down, यानी when the monkey goes -7 3 पे, steps जो down, मैंने it is ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। -7, and then when it goes 2 steps up, it is -5. So let's represent it. -4 -3 equal to -7. -7 से 2 अप plus हुआ 2 equal to तो -5 -5. Next, again the monkey jumps 3 steps down, 2 steps up. So it's very close, but it wants to jump up. So 3 steps down, 2 steps up. तो अब कहाँ पे आ गया वो? So -5 -3 is equal to -8. 8 -8 plus 2 equal to -6. 6। And now finally when it jumps 3 steps down, it reaches the water level and the monkey is very happy now. हाँ, So देखो अब लास्ट स्टेप में जैसे someone was saying ना, I think तन्मय was saying कि आखिरी इसमें वो एक स्टेप ही डाउन करता है, तो लेकिन पहले वो 9th लेवल पे पहुंचे तो -9 तक पहुंचने के लिए कंटिन्यूअसली व्हाट ही डिड, ही केम 3 स्टेप्स डाउन एंड देन 2 स्टेप्स अप। ये प्रोसेस वो कब तक करता रहा? जब तक वो -9 पे, मतलब 9th लेवल पे नहीं पहुंच गया, राइट? यस मैम। -6 -3 क्या हो जाएगा बेटा? 9. So this 9, was yes. So at 9th level, water is there.
तो अब -9 पे जब वो पहुंच गया है तो ये सब करने के लिए उसको हाउ मेनी जंप्स ही मेड 11 jumps. इन दिस टेबल. यस, हाउ मेनी जंप्स? 11 11 jumps. 11. जंप्स में, है ना? ठीक है. Was the first part of the question that the monkey wanted to reach the water level. From the topmost level, the monkey wanted to reach the water level, and for that, how was the monkey jumping? 3 steps down, 2 steps up. So in how many jumps did it reach the water level? The monkey has fallen. So in how many steps did the monkey reach the water level? In 11 steps. In 11 jumps. So In 11 you jumps. can also write like this in your notebook, है ना? आप अपनी Ma'am. नोटबुक में भी इस तरह से लिख सकते Ma'am. हो. हाँ, बोलो. मैम मैंने पेपर पे ड्रॉ करके किया था, तो मैंने वैसे लिख दिया था। कोई दिक्कत नहीं है. मैम ठीक है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या 11 जंप समझ नहीं आए कैसे हुए। 11th जंप में बेटा वो -6 पे था ना, तो -6 से वो 3 स्टेप डाउन गया. 3 स्टेप डाउन गया तो -6. ये कर्सर पे ध्यान दो. देखो 10th जंप में वो उसकी पोजीशन थी -6. अब -6 से वो 3 स्टेप डाउन गया तो क्या हो जाएगा? -3. यानी कहाँ पहुंच गया? -9 पे. अल्टीमेटली वेयर ही हैड टू रीच? एट -9. -9 पे पहुंचना था. अब वहां पहुंच गया तो 2 स्टेप अप नहीं जाएगा अब वो, है ना? अब वाटर लेवल पे पहुंच गया वो. हाँ, तो ये 11th जंप में वो कहाँ पहुंच गया? वाटर लेवल पे पहुंच गया. ठीक है. तो अभी तो क्या था? मंकी ऊपर बैठा था, अभी पानी पीने नीचे आया है, वाटर लेवल तक पहुंच गया है, पानी पी लिया है. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया है. ओके. यस मैम। Yes, ma'am. Now let's start second part. Dhaval, you read the second part of the question. मैम कैन आई रीड? Okay. Ma'am, can Pravanshika ma'am. read? हाँ, Pravanshika, you read. Dhaval is not there. Yes, ma'am. After Yeah. drinking water, he want to go back. For this, he jump 4 steps up and then jumps back 2 steps down. In every move, in how many jumps will he reach back the top step? हाँ, अब क्या है? पानी वानी पी लिया, अब उसे वापस भी तो जाना है ना, तो क्या करेगा? अब जब वापस जाना है तब भी वो अपनी बंदरों वाली हरकत करेगा. पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, है ना? इस तरह से. तो अभी क्या कर रहा है? जब उसको अब ऊपर जाना है वापस, देन इन विच वे ही इज मूविंग? 4 स्टेप अप जा रहा है और 2 स्टेप डाउन आ रहा है. यस. यस मैम। Yes, ma'am. तो अब इसको देख लेते हैं. तो अप के लिए हमने पॉजिटिव लिया है, डाउन के लिए नेगेटिव लिया है. नाउ लेट्स सी, वॉच द वीडियो एंड एंजॉय इट एंड लर्न इट. Starting from -1, it reaches the position -9 in 11 jumps. So that was the answer for the first part of the question. Now we move to the second part of the question, which says, now after drinking water, the monkey wants to move up. He wants to reach the topmost level now. So now from -9, it has to reach -1. So what is the starting position here? The starting position is now -9. And हाँ, देखो अब अभी कहाँ है मंकी? नीचे, है ना? जहाँ वाटर लेवल है. वाटर लेवल कहाँ था? -9 पे. तो मंकी अब यहाँ खड़ा है -9 पे. तो अभी उसके नंबर ऑफ जंप्स कितने हैं? 0. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अभी उसका? 0. तो 0 पे उसकी पोजीशन क्या है? -9. अब जब वो फर्स्ट जंप करता है तो फर्स्ट जंप में वो कितने स्टेप अप जाता है बेटा? मैम 4 स्टेप्स अप। 4 स्टेप्स अप जाता है और 2 स्टेप्स डाउन जाता है. तो 4 स्टेप अप हो जाएगा +4 और 2 स्टेप डाउन होगा -2. तो 4 - 2 क्या आ जाएगा बेटा? -5। अरे 4 - 2 2. मैम 2। चलो लेट्स सी. हाँ, it has to reach -1. Now this time the movement is a bit different. This time it is
4 steps up and 2 steps down. Focus. 4 steps up, that is plus 4, and 2 steps down, which will be minus 2. Again, the monkey does not want to jump straight away only in the upward direction, but it is jumping upward and downward, upward and downward. ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है. Here also, and we'll write them in the calculations also. So the starting position is minus 9. Now 4 steps up means 1, 2, 3, 4. So it jumps straight away to minus 5. So minus कहाँ पे आ 9 गया वो? plus अभी उसकी 4 पोजीशन gives क्या us होगी? हाँ, -5 plus 4. minus 5. After that, 2 steps down. So 2 steps down. See here, 2 steps down. So that is minus 2. Now what is minus 5 minus 2? It is minus 7. -7 है ना. Minus यहाँ पे समझो, सबसे पहले कहाँ था वो? -9 पे था. -9 से वो 4 स्टेप्स अप हुआ. अभी हम इसको स्टेप नंबर को नेगेटिव में ही रहने देते हैं ताकि तुमको समझने में आसानी हो. तो -9 पे था वो, 4 स्टेप अप हुआ, इसलिए +4 करेंगे. तो -9 + 4 कितना हो जाएगा बेटा? -5. ओके, यस मैम. क्लियर है? हाँ, अब -5 पे था, उसने क्या किया फिर? 2 स्टेप डाउन गया. तो 2 स्टेप डाउन गया तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा. तो -5 पे था, वहां से 2 स्टेप डाउन यानी -2. तो अभी मंकी कहाँ आ गया? सेकंड जंप में -7 पे आ गया. अब -7 से क्या करेगा वो? +4 करेगा. तो -7 + 4 यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना? -3. इन दैट वे इट विल बी गोइंग ऑन. और वो कब तक चलेगा? जब तक वो कहाँ ना पहुंच जाए? -1. -1 पे ना पहुंच जाए. 7. Next again 4 steps up. देखो, So 4 steps -7 से up, 4 स्टेप्स 1, अप, 2, 3, 4. It goes to -3 straight away. -3 पे आ गया 4 वो. step up is -3. 3 So -7 plus -7 4 पे था, +4 किया. gives us -3, and then 2 steps down. This already I have explained. Brings the monkey अब to -3 से fifth level 2 inside the water स्टेप tank. नीचे So आया. -3 -2 -3 -2 यानी कितना हो गया? -5. So the 5. monkey is at the level -5 right now, and now it moves 4 steps अब up now, -5 से finally. 4 स्टेप So अप it's an जाएगा. alternate movement. 4 steps up, 2 steps down. 4 steps up, 2 steps down. So now हाँ, तुम देख सकते हो इस टेबल में भी, जब 4 स्टेप अप है तो इट इज टेकन पॉजिटिव, एंड व्हेन 2 स्टेप्स डाउन देन इट इज टेकन नेगेटिव. अल्टरनेट उसका यही चल रहा है ना. 4 स्टेप ऊपर जाता है, 2 स्टेप नीचे आता है. अब यहाँ कहाँ आ गया है वो? अभी -5 पे खड़ा है. ये देखो, -5 पे खड़ा है. अब क्या करेगा वो? 4 स्टेप्स अप जाएगा. 4 स्टेप्स अप जाएगा तो -5 + 4 कितना हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो. -1. एंड वेयर ही हैज टू it रीच? is 4 steps -1. up from -1. -1 पे which पहुंचना brings था. the तो वो आ monkey गया अपने finally डेस्टिनेशन to पे. the topmost step. So it is -5 plus 4 equal to -1, which Yes. So in how many jumps he reached there? 5. 5 jumps. So that is the answer. तो ये टेबल तुम बना सकते हो इस तरह से और लिख सकते हो. इट इज क्लियर? जो स्टेप्स है उनको हमने माइनस की इसमें रखा है. तो इनिशियल लेवल पे जब वो वाटर लेवल पे पहुंच गया तब उसकी पोजीशन थी -9, है ना. 0 जंप में -9. फिर फर्स्ट टाइम जब उसने जंप किया ऊपर आने के लिए तो वो 4 स्टेप्स ऊपर चढ़ा. तो क्या हो गया? -9 + 4. कर्सर पे ध्यान देना. -9 + 4 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? -5. तो अब मंकी किस पोजीशन पे है? -5 पोजीशन पे है. अब -5 से उसने क्या किया? फिर 2 स्टेप डाउन आया. तो 2 स्टेप डाउन आया यानी -5 - 2. तो व्हाट इज द आंसर? -7, है ना. अब उसकी पोजीशन क्या हो गई? -7 पे है वो. -7 पे जब वो आ गया देन अगेन ही मूव्ड 4 स्टेप्स अप. 4 स्टेप्स अप तो क्या हो जाएगा? +4. तो -7 + 4 कितना हो गया? -3. एम आई ऑडिबल? यस मैम. Yes, ma'am. अब Yes, उसकी ma'am. पोजीशन कहाँ है? वो -3 पे है.
अब क्या करेगा वो 2 स्टेप्स डाउन जाएगा, तो -3 -2 हो जाएगा, तो -3 -2 हो गया -5। अब उसकी पोजीशन है -5 पे, -5 से देन अगेन ही विल मूव 4 स्टेप्स अप, then -5 + 4 it will give us -1. So this is the final destination for the monkey. monkey को जहां पहुंचना था वो अपने घर पहुंच गया, ठीक है। Is the Yes, ma'am. topmost Yes, step. Okay, so this is how we understand the question with the model that we have जहां से prepared चला here. था मंकी And पानी now you वानी can- पी के वहीं पहुंच गया। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. look at Yes, the ma'am. integer calculations that we have done in the table and तुम चाहे तो इस understand टेबल that का there was an स्क्रीनशॉट alternate ले लो। movement in both the questions. यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बाद में आराम से बनाते रहना। वैसे अब तुम समझ गए हो मैम तो बीच में अपने पेन मन आ से रहा भी है, बना सकते हो। क्या? बीच में पेन आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं है, ये बाकी तो पूरा है, और पूरा छापना थोड़ी है, टीपना थोड़ी है उसको देख के, अपना भी तो दिमाग लगाओगे, आप समझ गए हो तो। Yes, ma'am. Now in the second part, अब ले लो, अब पेन भी नहीं आ रहा है। So in 11th step he comes to the water level, and then in 5th step he comes back to the topmost level, ठीक है। Yes, ma'am. So did you enjoy this video? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम अभी थर्ड पार्ट भी बचा है। अच्छा, अभी थर्ड पार्ट भी है। What is the third part? Yes, ma'am. Ma'am, can I read Tanmay? Yes. Can I read Yes, double? ma'am. If the number of steps moved down is represented by negative integer and the number of steps moved up by positive integer, represent his move in part first and second by completing the following. A -3 + 2 then is equal to तो ये तो तुम minus लिख सकते हो बेटा, है ना। इसके आंसर तो अब तुम थर्ड पार्ट के खुद से दे सकते हो। yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। So in this way we can say our exercise 1.1 is done completely, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और before 1.2 मैम 1.2 के भी मैम 2 कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। यस, मैम मैंने कर लिया। वेरी गुड, कर लिया। मैम मैंने भी। कर दिया। वेल डन, वेल डन, बहुत मैंने कर अच्छी लिया। बात है। जिन मैम बच्चों मैंने ने भी कर। ओके मेरा बेटा, तो फर्स्ट चैप्टर हो ही गया था। चैप्टर ही हो गया है। ओहो, कौन है, किसका हो गया फर्स्ट चैप्टर? नाम बोलो। मैम मेरा भी हो गया। चलो तो फिर अगले का तुमसे ही समझते हैं फिर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ही हुआ है। मैम फर्स्ट चैप्टर नहीं मैम, सॉरी मैम 1.1 एक्सरसाइज। तो यू वर सेइंग चैप्टर। नो मैम, मैम वो गलती से मुंह से निकल गया मैम, वो 1.1 बोल रहा था। तो 1.1 तो अपनी भी कब से हो गई, इवन हम 1.2 पे स्टार्ट कर दिया था हमने, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी तो मैंने सोचा कुछ अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में तुम लोगों को बताया जाए। ऐसे ही मैं सिर्फ सॉल्व करके बताती तो तुम्हें मजा नहीं आता उस क्वेश्चन में। अभी तुम्हें वीडियो देखने में मजा भी आया ना, पूरा मॉडल उसका था तो Yes, ma'am. Model था. मॉडल था ब्लॉक से बनाया था हाँ, मॉडल। और इट वाज क्लियरली विजिबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें इसके थ्रू मैं बताती हूँ। आई ऑलवेज ट्राई कि इट शुड बी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इट शुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड, तुम लोगों को मजा भी आए और अच्छे से समझ में भी आए, है ना। हम इस तरह से ही पढ़ाई करेंगे, मैथ्स को ऐसे हवा नहीं बनाना है। इट्स नॉट डिफिकल्ट ओनली, ये कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम अगर रोज पढ़े, इंटरेस्ट लेके पढ़े, इंटरेस्टिंग वे में पढ़े तो मजा आता है समझने में, और हमारा ब्रेन भी शार्प होता है। यस,
देखो Yes, इसमें भी ma'am. एक और तरीके से भी इसमें गिवन है। My screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो इसमें भी दूसरे तरीके से प्रेजेंटेड है यहाँ पर, कितनी सारी स्टेप्स अप डाउन यू कैन सी, बट इसके थ्रू मैं तुम्हें बताती तो तुम्हें इतना समझ नहीं आता कि ये फर्स्ट स्टेप पे था, फिर पहले मूवमेंट में वो यहाँ आया 4 स्टेप, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर इतना सारा तुमको समझने में दिक्कत जाती, तो इसलिए मैंने इससे नहीं बताया तुमको, वीडियो के थ्रू समझाया ताकि तुम्हें इजीली समझ में आ सके। यस, ये टोटल इट वाज आस्क्ड ना, लाइक 4 - 2 + 4 - 2 + 4, इसका सम क्या है? इट इज द थर्ड पार्ट ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, ये तो ma'am. कर सकते हो बेटा, आप लोग अपने मन से भी कर सकते हो। हमें कर लिया है। क्या? मैम ये वाला कर लिया है। हाँ ठीक है। Now in 1.2, let me take it out. Exercise 1.2. Yes, this first question we have discussed yesterday. That write down a pair of integers whose sum is -7. ये तो कल कर लिया था, है ना बेटा? मैम आपकी स्क्रीन पॉज्ड है। Ma'am, freeze. प्लीज है मैम। अभी। Ma'am, yes, ma'am. Now is continue. देखो, this question we did yesterday. ये फर्स्ट क्वेश्चन Yes, तो हमने ma'am. कर लिया था, है ना? इसमें कई सारे आंसर्स इसके हो सकते हैं, आंसर्स कैन बी वेरी। क्वेश्चन 2 भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें और कंडीशंस स्पेसिफिक हो गई है कि राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose डिफरेंस गिव्स 8, यानी यहाँ पे हमको जो दोनों नंबर लेना है वो नेगेटिव इंटीजर ही लेना है और उनका डिफरेंस 8 होना चाहिए, मतलब दोनों नेगेटिव लेना है और एक में से दूसरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो -2 एंड -10, तो -2 में से अगर हम -10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 8। +8। लेकिन इसमें ऑर्डर चेंज करके करते तो आता क्या प्लस का 8? नो मैम। नहीं आता है ना, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट क्या है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव whose सम इज -5, मतलब अब हमको दोनों इंटीजर कैसे लेना है, एक पॉजिटिव लेना है, दूसरा नेगेटिव लेना नेगेटिव। है ना? और उनका सम क्या होना चाहिए, अब सम है मतलब वी हैव टू ऐड दीज नंबर, यस मैम। वो क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया -7 एंड 2, तो इसको जब ऐड करोगे -7 + 2 करोगे, अभी ऑर्डर चेंज किया तो कोई इसमें आंसर में अंतर आएगा क्या? If you write 2 plus मैम आएगा। -7, will you get the same answer? नो मैम। Yes, you are adding. Addition is commutative. पढ़ा था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं, लेकिन एडिशन में तो कर सकते हैं। हियर वी आर एडिंग, लिख के देखो जरा अपनी नोटबुक में, 2 प्लस ब्रैकेट में -7, सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है? -5 ही आएगा। -5 ही आ रहा है। -5. हाँ फिर मैम -5। यस, नाउ सी मैम द, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। किसकी एडिटिव आइडेंटिटी? मैम
यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, यहाँ पर सिंपली हम ऐड कर रहे हैं, मतलब एडिशन ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो yesterday we have discussed properties and we have seen that addition is commutative. Commutative मतलब ऑर्डर अगर चेंज करें तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है ना? ओके। See the third part of this question. Write a negative integer and a positive integer. मतलब आप दोनों इंटीजर कैसे लेना है, एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है, और उनका डिफरेंस मतलब अब हमको क्या करना है, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। देन व्हाट शुड बी द डिफरेंस? जल्दी बताओ। -3 होना चाहिए, है ना? तो हमने एक नेगेटिव मान लो ले लिया -2 और पॉजिटिव ले लिया +1। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। तो -2 में से +1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? -2 - 1 यानी -3। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज डन। अब ये क्विज वाला है, हो जाएगा, अभी है 2 मिनट, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, हम लोगों के भी क्विज होता है ना? यस मैम, होती है। हाँ, लेकिन हम जब क्विज करते हैं तो माइनस मार्किंग नहीं रखते हैं, लेकिन अभी ये जो क्विज हुआ है इसमें माइनस मार्किंग भी है। तो अब एक टीम है ए और दूसरी टीम है बी। सो देयर आर 2 टीम्स ए एंड बी, एंड उनके 3 डिफरेंट राउंड्स में उनके स्कोर्स आर गिवन हियर। ठीक है, तो टीम ए का स्कोर क्या है? फर्स्ट राउंड में टीम ए ने स्कोर किया -40। ओके, टीम ए ने सेकेंड राउंड में किया 10 और थर्ड राउंड में स्कोर किया कितना? 0। और टीम बी ने फर्स्ट राउंड में स्कोर किया कितना? 10। सेकेंड राउंड में 0। और थर्ड राउंड में -40। -40। ठीक है, ये दोनों टीम के 3 डिफरेंट राउंड्स के स्कोर हैं। नाउ क्वेश्चन, अनुभा रीड द क्वेश्चन। Yes, ma'am. In a quiz, team A scored -40. ये तो मैंने 10 रीड कर and दिया बेटा, यहाँ से रीड करो। विच टीम? Okay, ma'am. Which team scored more? Can you say what? We can add integers in any order. यस। नाउ विच टीम स्कोर्ड मोर? तो दोनों टीम का हम क्या करेंगे, हमको फाइनल रिजल्ट देना है। यू पीपल आर जज, तुम सब जज हो। टीम ए और बी के बीच में क्विज हुआ, उनके स्कोर तुमको पता है। अब बताओ कौन सी टीम जीती, जल्दी से बताओ, क्या करोगे? मैम दोनों के सेम है। कैसे कंक्लूजन निकालोगे? मैम पहले उनको मैम ऑर्डर में रखेंगे। मैम ड्रॉ हुआ है। वो तो ठीक है, ड्रॉ हुआ, लेकिन कैसे पता चला? ऐसे ही थोड़ी हवा में थोड़ी ऐड करके। यस, तीनों राउंड के स्कोर को क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। फाइनल स्कोर तभी बनता है ना जब अलग अलग राउंड्स के स्कोर को क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं। तो टीम ए के तीनों राउंड के स्कोर को ऐड करो, मींस यू विल हैव टू ऐड -40 +10 +0। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ, मैं अभी सॉल्यूशन नहीं शो करूंगी स्क्रीन पे। जल्दी बताओ कितना होगा? -30। हाँ, -30। वेरी गुड। और अब टीम बी का स्कोर बताओ, फाइनल स्कोर। 10 + 0 +-40। Ma'am, -30. So both teams scored -30. -30। यस, इस तरह से लिखोगे। देखो, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए -40 +10 +0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -30। टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, ये भी आ गया -30। तो दोनों टीम का स्कोर क्या हुआ? एक जैसा ही हुआ। द स्कोर्स ऑफ बोथ द टीम्स आर सेम। और इसमें फिर एक क्वेश्चन का पार्ट था कि कैन वी ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? तो व्हाट इज द आंसर? यस। यही तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया ना?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. एडिशन कैन बी डन इन एनी ऑर्डर. एडिशन के समय, प्लस करते समय अगर हम इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन डिफरेंस में नहीं कर सकते. सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते. क्लियर है? यस मैम. तो ये क्वेश्चन हो गया सेकंड. इसी की तरह अब जितने और क्वेश्चन हैं, अगर वर्ड प्रॉब्लम इसमें नहीं, अब ये तुम लोग कोशिश करना आगे के क्वेश्चन. एक ही क्वेश्चन और बचा है, तो इसमें तुम लोग ट्राई करना. जैसे देखो, -5 प्लस -8 है, तो इधर इस तरफ क्या लिखेंगे इस ब्रैकेट में? अब भी हो जाएगा ये तो 2 मिनट. -5. फिर -53 में क्या ऐड करें कि वही नंबर आ जाए? 0. वेरी गुड. फिर 17 में क्या ऐड करोगे कि 0 आ जाए? -17. -17 उसका एडिटिव इनवर्स है ना. फिर यहाँ पर 13 प्लस -12 और यहाँ पर कौन है? 13 प्लस -12 प्लस -7. तो इस ब्रैकेट में कौन आना चाहिए? -7. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? किस वे में लिखा है ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नो नो नो, कम्यूटेटिव 2 के लिए होती है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव. यस, वेरी गुड. और ऐसे ही लास्ट वन को भी कर लोगे. यहाँ पे लास्ट वन का आंसर क्या आना चाहिए ब्लैंक में? -3. Yes. So with this, I think this exercise is completed. Am I right? Yes ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Okay. So that's all for today's class, children. ठीक है. आज के लिए इतना sufficient है. Yes, ma'am. Okay ma'am. Now we will conclude today's class with Shanti part. So all of you just join your hands, close your eyes. We will conclude with Shanti part. Om Shanti Shanti Shanti. Sarah ma'am, thank you ma'am. Okay, Bye. Sarah ma'am, Madam, take care of thank you, yourself ma'am. and your family. Stay happy and healthy. Sai Ram, you can leave the meeting. Sai Ram, beta.